So please remember, if you are using FCFF to find the present value of FCFF, you will need weighted average cost of capital, WACC. If you are using FCFE, you will need cost of equity. And that is where you will have to be extra careful while solving a case in the examination hall. Why? Because if you make a mistake in reading FCFE or FCFF, it is quite possible that for FCFF you will use cost of equity for discounting, and for FCFE you will use weighted average cost of capital for discounting, and both are going to be wrong, and that is what you have to remember. So Baman sir, I hope you are getting my point. Since in this case that we are trying to solve, what has been given to you already as part of the case is the FCFE, free cash flow for equity. Since it is free cash flow for equity, for the discounting of free cash flow of equity, what you need? You need is cost of equity. And for cost of equity, how to calculate it? We have just understood, and all the informations are given to you. That I can do. Yes. Actually, I got हाँ जी, confused with it. हाँ जी, So 145 हाँ जी. 145 is the equity. I'm getting, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नो नो, आई सर, इस ये बहुत आसान है. वो थोड़ा शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि फेमिलियरिटी नहीं है. 145 तक तो आ गया. हाँ. कॉस्ट ऑफ इक्विटी 100 into 0.145 is equal to 145 तक आ गया. हाँ. मतलब ये है कि FCF. हाँ, तो आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लिया, विच इज 14.5%. हाँ. बिकॉज चांस की बात है कि मैंने जो आपको एग्जाम्पल इलस्ट्रेट किया और जो केस स्टडी दिया, दोनों में जो नंबर है वो सेम है. हमने तो उसको निकाल लिया, कोई तकलीफ नहीं है. वेरी गुड. अब आपने वो निकाल लिया. अब आपको क्या करना है? लेट अस गो टू दी नेक्स्ट स्टेप नाउ. सो अब बताइए मुझे कि अब नाउ वी हैव टू फाइंड. ओके, सो जस्ट 4 minutes एंड लेट मी जस्ट शो इट टू यू हियर. ओके, अब देखिए, प्रसन्ना सर, बमन सर, just be with me for 3 minutes and we are through. So first stage, explicit period is of 5 years, right? And that starts from 21, 22, 23, 24 and 25. FCFE for the year 2020 has been given to you, which is 100. It is told to you in the case that during the explicit forecast period, company will grow at the rate of 12%. So that means the FCFE will grow at the rate of 12%. तो यानी कि क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 21 में FCFE कितना होगा? 112. 22 में 125.44, 23 में 140.49, 24 में 157.35 एंड 25 में 176.23. इज दैट ओके बमन सर? हाँ सर. वेरी गुड. अब जहाँ से एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड खत्म होता है, वहाँ से टर्मिनल पीरियड चालू होता है, राइट? तो टर्मिनल पीरियड का ग्रोथ रेट कितना दिया है? 5%. 5%. Is that right? So, अब what is going to be my cash flow for the terminal period? My cash flow for the terminal period is going to be cash flow for the 5th year into 1.05. So that is my cash flow for the that is my cash flow for the terminal period, right? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे
इसको कैपिटलाइज करना है, जैसे कि गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के हिसाब से इसको मुझे कैपिटलाइज करना है। उसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे, उसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे? नाउ this is my cash flow, and this I need to divide by my cost of equity, which is 14.5, 0.145, right, minus the growth rate, which is how much? 0.07. 0.05, 5 SL actually. Oh, sorry. No worries, no worries. So this is my cash flow for the terminal period. Are you with me, everyone? That's right. Okay, very good. अब so this is my cash flow and this is my discounting factor. Discounting factor मैंने कैसे निकाला? 1 upon 1.145 because that is my cost of equity. सेकेंड ईयर का कैसे निकाला? जो पहले साल का है उसको भी फिर 1.145 से डिवाइड कर दिया, और बाकी का कैसे निकाला? बाकी का मैंने उसको ड्रैग कर दिया, तो ये मेरा डिस्काउंटिंग रेट हो गया। अब आपको याद होगा, अच्छा ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया, सो ये जो है FCFE इसको हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको हमने ड्रैग कर दिया, तो ये दिस इज़ माय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द FCFE फॉर 5 ईयर्स, और यहाँ हमने उसका टोटल कर दिया, सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, राइट। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड स्टेज एंड दैट इज टर्मिनल पीरियड। टर्मिनल पीरियड का मेरा कैश फ्लो कितना है? 1947.85, और आपको याद होगा मैंने कहा था कि टर्मिनल पीरियड का जो कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट करने के लिए आप एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसको यूज़ करेंगे, तो हमने उसको यहाँ क्या कॉपी कर लिया, तो उसको हमने डिस्काउंट किया, दैट मीन्स 1947.85 इंटू ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो ये कैश फ्लो हो गया फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो फॉर द टर्मिनल पीरियड। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फॉर द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड। अब हमने क्या किया? अब हमने ये दोनों को ऐड कर दिया, है ना, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? सो इक्विटी वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड प्लस प्रेजेंट वैल्यू, तो हमने ये जो है ये दिस इज द टोटल ऑफ दिस प्लस दिस। आर यू विद मी एवरीवन? है ना। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, present value of terminal period put together is your equity value. So this is your equity value. अब enterprise value कैसे मालूम करेंगे? Enterprise value का मतलब ये है equity value plus the debt. Debt is given to you in the example of 500. So 1457. So that means 1457 plus 500. एंड दैट्स योर एंटरप्राइज वैल्यू। अच्छा, अब आपको दिया हुआ है उस केस में FCFE पर शेयर इज 10 रुपीज़, FCFE इज 100 रुपीज़, सो नंबर ऑफ शेयर्स आर हाउ मेनी? 10 crores. So if the number of shares are 10 crores, that means equity value per share is going to be how much? Equity value divided by number of shares, and that's your equity value per share. So this is how you will find. Does it make sense to you, Baman sir? Yes, sir. Excellent. And Prasanna sir? Yeah, it's very clear. वेरी गुड। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि कल आपको रात को मिलने से पहले एक छोटा सा केस और बना के भेज दूँ, तो और मैं यही वाला भेजूँ ओके, मैं उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करूँगा, और इस बार ये FCFE का किया हमने, मैं आपको FCFF का केस बना के भेजूँगा, है ना। तो आपने समझ लिया है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने समझ लिया है कि WACC कैसे कैलकुलेट करते हैं, और तो वो कैलकुलेट करके आप जरा उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक इट, है ना। और उसके बाद में कल हम रात को मिलेंगे तो हम उसको समझ के लेंगे, है ना। परफेक्ट परफेक्ट, ओके, एक्सीलेंट, ओके, आई थिंक आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। Yes. वेरी गुड। बमन सर? Somebody was there to join. He has not joined. No, he called me up in between,
एंड ही सेड सर 4 दिन का निकल चुका है, 3 दिन का निकल चुका है, तो ही सेड सर मैं आपका अगला जो बैच है वो ज्वाइन करता हूँ. अगला बैच आपका 5th से है ना? हाँ 5 दिसंबर से है सर अगला बैच. हाँ. नेक्स्ट बैच इज फ्रॉम 5 दिसंबर. तो आई सेड ओके वॉट एवर आई मीन सूट्स यू इज फाइन विद मी. So Okay, sir. yeah, sure. All right, sir. Okay, thank you so much and good night to both of you. Good night. Good night, sir.